Hello, hi students. Hope all you are good and very well. So in the last session, we were completed our phylum Porifera. So in this session, we will complete our phylum Coelenterata and we will try to cover our phylum also Ctenophora. Okay, as the name indicate, they have a name Coelenterata. Why they have a name Coelenterata? कुछ तो रहा होगा ना कि नाम Coelenterata दिया है. So yes, they got their name Coelenterata because they have a gastrovascular cavity, and that cavity is also known as the coelentron. Okay, from this coelentron cavity they got their name Coelenterata. Okay, so why they have a Coelenterata name बेटा? Because इनके पास एक gastrovascular cavity होती है जिसका नाम होता है coelentron. Okay, they are also known as the nidaria. Why nidaria? Because इनके जो टेंटिकल्स होते हैं ना, इनके टेंटिकल्स में ना स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं. ठीक है, उन सेल्स में ना उन सेल्स को हम निडेरिया बोलते हैं, इसलिए इनको उन सेल्स को हम नीडोसाइट्स बोलते हैं, इसलिए वहां से इनका नाम निडेरिया आया है. ओके, so they have a coelentron cavity here you can see this coelentron cavity and they have a nidocyte cell. Where this nidocyte cell is present? Nidocyte cell is present in their tentacles. Okay, so just discuss about their general characteristics. So habit and habitat, they can be solitary. What is solitary? जो अकेले रहते हैं, जिन्हें अकेले रहना पसंद है. And they are some colonial as well as they are sessile. Sessile are those who are attached with their substratum. They are free swimmers. What is the meaning of the free swimmers? जो वाटर करंट के साथ स्विम करते हैं. ओके, ऑल आर एक्वेटिक एंड मोस्टली आर मराइन. Some are aquatic beta and some are marine also. Okay, level of organization, their tissue level of organization, they have triploblastic germ layer, they have coelom. As you know that a coelomate they have, because क्या two germs layer they have ना, ectoderm and the endoderm. Okay, body plan, blind sac body plan they have, and symmetry, radially symmetrical, segmentation absent, notochord absent. See, this is हमारी ये इमेज है. ठीक है, हम इसमें देखेंगे कि यार कैसे ये ब्लाइंड सेक है. हम अगर देख रहे हैं यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक ही ओपनिंग दिख रही है और दूसरी ओपनिंग हमें क्लोज दिख रही है. और हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था कि ब्लाइंड सेक कौन होते हैं, जिनका सिर्फ वन साइड ओपन होता है एंड सेकेंड साइड जिनकी क्लोज होती है. ओके, सो देखो इसी ओपनिंग से बेटा सब चीजों का इंजेक्शन होगा. ओके, फ्रॉम द सेम ओपनिंग दे विल डू द इंजेक्शन. ये एक ही ओपनिंग को इंजेक्शन के लिए भी यूज करेंगे एज वेल एज दे आर आल्सो यूज्ड फॉर द इंजेक्शन एज वेल एज. ओके, तो ये यहाँ पर इनका जो माउथ है ना बेटा, माउथ इनका ना थोड़ा हाइपोस्टोम्स बोलते हैं. हाइपो मींस अबव एंड स्टोम्स वर्ड इज यूज्ड फॉर द माउथ. ओके, तो इनके जो हम एंटायर गट देखते हैं ना, तो जो गट होता है ना उसके अंदर हमें कैविटी दिखती है. तो गैस्ट्रो वर्ड हम बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं? स्टमक के लिए. तो हमें इनके गट के अंदर ना कैविटी नजर आती है, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. ओके, और उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का नाम है सीलेंट्रॉन. ओके, डू यू रिमेम्बर तुम्हारे पॉलीफेरा के पास भी एक कैविटी थी जिसका नाम क्या था? स्पॉन्जोसील कैविटी. And they do also have a cavity in their gastrovascular system, and this cavity is known as the coelentron cavity. That's why they got their name Coelenterata. Okay, suppose they are the tentacles of this phylum. Okay, if they are their tentacles, so on this tentacles they have some specialized cells, and this cells is known as the nidocyte cells, and nidocyte cells होने की वजह से they got their name nidaria also. Okay, तो तुम्हारा जो Coelenterata है ना, दे हैव सम प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल दे फाउंड इन द पॉलीफॉर्म एंड अनदर दे फाउंड इन द मेड्यूसा फॉर्म एज वेल एज. ओके, so what are the characteristics features of the polyform and the medusa form? So beta, your polyform, this is like a polyform and this is the medusa form. So polyform organisms looks like a cylindrical in shape. Polyform organism looks like cylindrical in shape. Medusa looks like umbrella like. Okay, they are sessile, means they are not able to move, and they are free swimmers. Okay, they are free swimmers. They do reproduction by the asexual method. They do reproduction by the sexual method. Though statocyst is present, and statocyst is present in the medusa. What is the statocyst? Statocyst is new word for you. So see beta, statocyst is a balancing structure. Statocyst is what? Statocyst is a balancing structure. See beta, ये जो मूव ही नहीं कर सकता उसको क्या खाक बैलेंसिंग है?
जो वाटर करंट के साथ फ्लो करेगा, अब वो कहीं इधर उधर ना निकल जाए, तो उसके लिए तो उसे बैलेंस करना पड़ेगा ना खुद को. सो दैट्स व्हाई दे हैव अ बैलेंसिंग स्ट्रक्चर एंड दैट बैलेंसिंग structure is known as the statocyst. Okay, statocyst is what? Statocyst is the balancing structure and they do not have any statocyst. Example is your admesia and the hydra, and example is your aurelia which is your medusa. Okay, बहुत ही सिंपल है. पॉलिप एंड द मेड्यूसा. पॉलिप सी देखो सिलेंड्रिकल शेप है, अम्ब्रेला जैसा. ओके, अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है. सिजाइल है, वो फ्री स्विमर्स है. Since they are sessile, so they do not need any statocyst, but they are a free swimmer, so they need a statocyst structure. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एग्जाम्पल कौन है आपका? एडमेशिया एंड हाइड्रा. एग्जाम्पल कौन है आपका? मेड्यूसा का ऑरेलिया. वेरी सिंपल. नेक्स्ट बेटा, they also have a one property which is metagenesis. ठीक है, डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन मेटामेरिज्म एंड द मेटाजेनेसिस. मेटामेरिज्म क्या था? एक्सटर्नली एंड इंटरनली बॉडी डिवाइडेड इनटू दी सेगमेंट्स. बट here we are talking about the metagenesis. What is metagenesis? Metagenesis is also known as the alternation of the generation. इसमें क्या होता है बेटा? As you know that कि कुछ आपके जो सीलिंग ट्रेट्स होते हैं बेटा, आधे कुछ पॉलीफॉर्म में मिलते हैं और कुछ आपको मेड्यूसा फॉर्म में मिलते हैं. Some are found in the polyform and some are found in the medusa form. अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे भी हमारे पास थर्ड कैटेगरी है जो अपना हाफ ऑफ लाइफ स्पेन पॉलिप लाइफ स्टाइल में जीते हैं और कुछ अपना हाफ ऑफ लाइफ स्टाइल मेड्यूसा फॉर्म में जीते हैं. यस बेटा, इट इज ट्रू. हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिलेंट्रेटा में जो अपना हाफ ऑफ लाइफ स्पेन पॉलिप की तरह स्पेंड करते हैं और हाफ ऑफ लाइफ स्पेन वो अपना मेड्यूसा में स्पेंड करते हैं. तो देखो क्या करते हैं, जब इन्हें पॉलिप टू मेड्यूसा जाना होता है तो दे शो दी asexual mode of reproduction, एंड जब ये मेड्यूसा टू पॉलिप जाते हैं तो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. एंड दिस साइकिल इज नोन एज द मेटाजेनेसिस और द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन. Polyp to medusa, how they reproduce? By the asexual mode. Medusa to polyp, how they reproduce? By the sexual reproduction. This type of a cycle is known as the metagenesis, or you can call it as the alternation of the generation beta. Okay, polyp to medusa asexually, medusa to polyp sexually. And what are the organism? That is your physalia and the obelia. Okay beta, clear? तो बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है. कुछ अपनी लाइफ स्पेन, हमारे पास थ्री कैटेगरीज है, कुछ पॉलिप में जीते हैं, कुछ मेड्यूसा में, कुछ ऐसे हैं भाई जो इनका अपना ही अलग अंदाज है. हाफ ऑफ लाइफ स्पेन पॉलिप में स्पेंड करेंगे, हाफ ऑफ लाइफ स्पेन मेड्यूसा में. तो पॉलिप टू मेड्यूसा वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा? असेक्सुअली. मेड्यूसा टू पॉलिप कैसे आएंगे? सेक्सुअली. ओके, जो ये साइकिल होते हैं इसे हम मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं. अब हमने बोला था कि जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके पास टेंटिकल्स होते हैं. देखो ये तुम्हारा हाइड्रा है, ये हाइड्रा के क्या आएगी? टेंटिकल्स हैं ये हाइड्रा के. ठीक है, इन टेंटिकल्स में इनके पास होते हैं सेल्स. उन सेल्स का नाम होता है बेटा नीडोसाइट्स. ओके, और आप उसे क्या बोल सकते हो? नीडोब्लास्ट भी बोल सकते हो. साइट्स जो होता है ना, पीछे अगर CYTES लिखा हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं. तो इनके टेंटिकल्स में ना बेटा देखो क्या होता है, सेल्स होते हैं. सपोज ये तुम्हारा नीडोब्लास्ट सेल है जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा? नीडोसाइट्स है. ठीक है, जो नीडोसाइट सेल्स होते हैं बेटा इनके अंदर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? नेमेटोसिस्ट. ओके, नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट या आप इसे स्ट्रिंगिंग सेल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, इन स्ट्रिंगिंग सेल्स दे हैव अ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज द नेमेटोसिस्ट. नेमेटोसिस्ट इज द पॉइजनस. नेमेटोसिस्ट इज व्हाट? नेमेटोसिस्ट जो आपकी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर आपका पॉइजन फिल होता है. कैसी है ये आपकी? पॉइजनस है. ओके, अगर आपको ये स्ट्रक्चर देखनी हो, फिलामेंट, नीडोसिल बेड, लाजो न्यूक्लियस, ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता बट एक बार जस्ट देख लेना. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्ट्रिंगिंग सेल्स हैव द नेमेटोसिस्ट. ओके, नेमेटोसिस्ट क्या है बेटा? पॉइजनस कंटेन करा हुआ है इसने हमने. नेमेटोसिस्ट आपका कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इन विच दे हैव अ पॉइजन. ओके, तो व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस स्ट्रिंगिंग सेल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा दे आर यूजिंग इन द ऑफेंस एंड डिफेंस. Second, they used as a protection. Okay, protection from the predators. Okay, and they can hurt their prey as well as. Okay, so these are the functions of the stinging cells. Cells have nematocyte,
but nematocyte does not contain your stinging cell. Okay. Okay, another property of the coelenterata are some are found in the coral form as well as. बेटा coral form जो है आपकी they are exclusively marine, मीन्स ये आपको सिर्फ मराइन वाटर में ही मिलेगी और कहीं आपको ये नहीं मिलेगी. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन. क्या होता है ये अपनी बॉडी के बाहर ना एक एक्सोस्केलेटन बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का. अगर आप में से किसी लोगों ने सी वॉकिंग या सी डाइविंग करी होगी तो आप जब अंडर द सी गए होंगे, सी बेड पे आपने देखा होगा वहां ना ऐसे ब्यूटीफुल कोरल्स होते हैं. इन्होंने अपनी बॉडी के बाहर ना एक व्हाइट स्मोकी कलर का सिक्रीशन किया होता है. वो व्हाइट स्मोकी कलर का सिक्रीशन क्या है? वो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सिक्रीशन. ठीक है, तो वो बेटा ये वो उनका क्या एक्सोस्केलेटन है. हमारे पास ना स्केलेटल सिस्टम ना दो तरह के होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन और दूसरा होता है एंडोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन वो होता है जो हमें बॉडी में बाहर से प्रोटेक्शन दे. अगर सपोज इफ वी टॉक अबाउट द ह्यूमंस, वी हैव एक्सोस्केलेटन, यस वी डू हैव अ हेयर्स, we have a nails, we have a skin, yes. or what endoskeleton we have a proper bony endoskeleton जिसपे हमारी बॉडी पूरा फ्रेम है. सपोज हमारे पास एंडोस्केलेटन नहीं होता तो वो टॉम एंड जेरी में से रोल नहीं कर देते, वैसे ही नहीं लगते हो. तो इनके पास सिर्फ एक्सोस्केलेटन होता है. एक्सोस्केलेटन में ये क्या करते हैं बेटा, कैल्शियम का सिक्रेशन करते हैं आउटसाइड द बॉडी. तो दे आर कौन सी, दे आर व्हाट फॉर्म बेटा, दे आर पॉलीफॉर्म एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. वेरी इंपॉर्टेंट, आप इन्हें कहीं भी ऐसे फ्रेश वाटर और एक्वेटिक रीजन में नहीं दे सकते. दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एंड दे सिक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट देयर फिजियोलॉजी. डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दे हैव. व्हाई बेटा? because they belongs to the tube within tube body type plant. Oh sorry, they belongs to the blind sac body plant. Both intracellular and the extracellular digestion take place here. Extracellular and the intracellular digestion, अब ये क्या होता है? We have two type of a digestion. First one we have intracellular digestion. Intracellular digestion में बेटा क्या होता है? Suppose this is your cell, okay? This is your cell और सराउंडिंग में क्या पड़ा हुआ है? फूड पड़ा हुआ है आपका. ओके, तो ये सेल क्या करेगा? ये जो फूड है ना ये इस सेल के अंदर आ जाएगा. देन सेल इस फूड को डाइजेस्ट करेगा. तो जो यहाँ पर डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन हैपेंस विद द सेल्स ओनली. तो दैट टाइप ऑफ अ डाइजेशन इज नोन एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन. बट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या होता है? ये आपका सेल है, सराउंडिंग में आपके फूड पार्टिकल्स. सपोज हमारा गट है, स्टमक है हमारा, ठीक है, गट है, हम खाना खाते हैं, वो सराउंडिंग गट में खाना आया हमारा. तो जो हमारे सेल्स होंगे वो अब इस खाने को अंदर नहीं ले लेंगे अपने. हमारे सेल क्या करेंगे? फर्स्ट दे विल सिक्रेट सम काइंड ऑफ एंजाइम एंड दैट एंजाइम विल टेक एन एक्शन ऑन दिस फूड पार्टिकल्स. तब हमारी बॉडी में डाइजेशन होगी. ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ हो रही है? आउटसाइड ऑफ द सेल. तो ये क्या हुआ हमारा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. इनसाइड द सेल जो हो रहा हो वो इंट्रासेलुलर, और जो आउटसाइड द सेल हो रही हो डाइजेशन वो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. तो ह्यूमंस में अपने में कैसी होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन. ऐसा तो नहीं हमारे सेल्स के अंदर खाना घुस गया तब डाइजेशन हो रही है, नहीं. रेस्पिरेशन एब्सेंट, सर्कुलेशन एब्सेंट, एक्सक्रीशन एब्सेंट. तो कैसे होगा? बाय जनरल body surface. Okay, just simple diffusion. Nervous system, for the very first time, very important, for the very first time apolar neurons developed. Okay, what is apolar neurons? बेटा जब आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ोगे तो देन वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स. तो एपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है बेटा? एपोलर न्यूरॉन्स, आपको नॉर्मल अपने न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पता है. ये आपका क्या होता है? ये आपके बीच में क्या होते हैं? मिड में सेल बॉडी होती है. ओके, ऐसे यहाँ पर क्या होती है? आपकी सेल बॉडी होती है आपकी, और ये आपके क्या होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं बेटा? एक्सॉन होता है. ओके, सेल बॉडी को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं बेटा? साइटोन बोलते हैं. ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर तो पता है आपको. बट एपोलर न्यूरॉन में क्या होता है बेटा? सिर्फ उनके पास क्या होती है? सेल बॉडी होती है. उनके पास ना डेंड्राइट्स होते हैं ना एक्सॉन होते. ठीक है, तो दैट्स उन्हें बोलते हैं अपोलर न्यूरॉन, जिनमें सिर्फ सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, ना डेंड्राइट्स होंगे ना उनके पास एक्सॉन होगा. ओके, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम they was developed their nervous system. so obviously primitive टाइप कैरेक्टर आएंगे. तो primitive टाइप कैरेक्टर में इनके पास अपोलर न्यूरॉन्स आया. अपोलर न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडी होती है. Nerve cells are organized in a nervous net because they do not have a particular type of a system just like us. तो बहुत ही नर्वस सेल्स ऐसे मैशी नेट की फॉर्म में अरेंज होते हैं. रिप्रोडक्शन, बोथ यूनिसेक्सुअल एंड दी
बाइसेक्सुअल, ओके, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं बेटा और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। Bisexual means male and female organs are present in the one organism. Okay, both sexual and the asexual reproduction, fertilization, internal and the external, as well as development, direct and the indirect sensory structure. You know that they have a nidocyte cell as well as they have a statocyst. Okay, there some members have tentacles. Tentacles may they have, yes, they have a nidoblast cells, or you can call as the nidocytes. And another name of nidocytes are springing cell. Okay, used to capture prey. Statocyst may be present in the tongue. Okay, examples are very important beta. Physalia, Portuguese manner of what? P for Physalia, P for Portuguese. Okay, Admesia, sea anemone. Penitula, sea pen, pen. Gorgonia, sea fen. Medenia, brain coral. Obelia, sea fur. Aurelia, jellyfish. Hydra is your freshwater polyp. Okay, examples are very important क्योंकि एग्जाम्पल्स में से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ फाइलम विच इज योर टीनोफोरा. टीनोफोरा, व्हाई दे गॉट देयर नेम टीनोफोरा? बिकॉज दे हैव अ कॉम्प्लेट्स ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है बेटा? ऐसे कॉम्प्लेट्स होती है. ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या होती है? इनकी कॉम्प्लेट्स होती है. ओके बेटा, इन्हें ऑल्सो सी वॉलनट, सी जेलीज भी बोलते हैं. क्यों? इनकी जो शेप होती है ना वो वॉलनट जैसी लगती है. जेलीज क्यों बोलते हैं इन्हें? देखा है ना आपने, जेली एकदम ट्रांसपेरेंट होती है. बेटा ये इतने ट्रांसपेरेंट होते हैं कि आप इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर भी देख सकते हो, तो इसलिए हम इन्हें सी जेलीज भी बोलते हैं. और इनकी बॉडी के ऊपर कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए हमने इन्हें क्या नाम दिया? टीनोफोरा दिया. जो ये कॉम्प्लेक्स होती है ना बेटा, ये 18 नंबर होती है और ये क्या होती है? सिलिएटेड होती है. इनके ऊपर सीलिया होता है. और तुम्हें पता है जब भी किसी के ऊपर सीलिया होगा तो वो क्या हेल्प करेगा? लोकोमोशन में हेल्प करेगा. ठीक है, देखो यहाँ पर इनके पास भी टेंटिकल्स है, बट इनके टेंटिकल्स सिलेंट्रेटा से अलग है. क्यों? इनके टेंटिकल्स में कोई ऐसा स्पेशलाइज सेल नहीं है. इनके पास क्या है? सिलिएटेड टेंटिकल्स होते हैं जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करेगा. तो बेटा दे हैव सम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. हैबिट एंड हैबिटेट. टीनोफोरा आर योर प्लैंक्टोनिक हैबिट, फ्लोटिंग इन द सरफेस water, exclusively marine. See beta, they are exclusively marine phylum. We have 3 phylums which are exclusively marine. First is our Ctenophora, and second we have Echinodermata, and third we have Hemichordata. Okay, level of organization, tissue level of organization, germ layer, diploblastic, coelom, coelomate. They are body plan, blind sac, symmetry, radially symmetrical, segmentation absent, notochord also absent. Okay, properties of the Ctenophora, the bioluminescence. They have a property of a bioluminescence, means they emit light. जैसे जुगनू होता है ना, जुगनू अपनी टेल में से लाइट को एमिट करता है, और ये भी ऐसी ही लाइट का एमिशन करते हैं. ओके, so they have a property of a bioluminescence. They have a external ciliated complex. They are 18 numbers. And what are the function of the ciliated complex beta? They help in the locomotion. As simple as that. Physiology, incomplete digestive system, both intracellular and extracellular digestion, respiration, circulation, excretion absent, general body surface, nervous system, diffuse type, reproduction, bisexual, sexual reproduction, fertilization, external, development, indirect. See बेटा, अगर तुम थोड़ा याद करने के लिए, अगर मैं तुम्हें थोड़ा इजी बताऊं, सिलेंट्रेटा में तुमने देखा सारे फंक्शन बहुत टाइप थे, बट यहाँ पर देखो एक ही फंक्शन है. वहां पर रिप्रोडक्शन में उनके पास यूनिसेक्सुअल भी थे, वो बाइसेक्सुअल भी थे, बट देखो टीनोफोरा को ये सिर्फ कैसे है? बाइसेक्सुअल है. तो ऐसे तुम कोरिलेट करके ना याद कर सकते हो. सेंसरी स्ट्रक्चर, दे मे हैव टेंटिकल्स. कुछ के पास टेंटिकल्स हो भी सकते हैं, कुछ के पास नहीं हो सकते, बट जिनके पास टेंटिकल्स होंगे बेटा, दे आर ऑलवेज 2 in number. Okay, and statocyst also present. You know that what is a statocyst? It is your balancing structure. Example is your Pleurobracia, that is sea gooseberry. Gooseberry पता है किसे बोलते हैं? आंवला. आंवला को gooseberry बोलते हैं. ओके, तो ये आंवला जैसा लगता है, समुद्र का आंवला, इसलिए इसको कॉमन नेम है इसका sea gooseberry. And your Tinoplanum. Okay, hope you like the lecture. Okay, or in the next class we will discuss about our phylum Platyhelminthes. Till then, take care. पढ़ते रहिए. If you have any doubt, do let me know in the comment section. Take care. Bye bye.